نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ساکی۔ ناظرین محترم یل ترالس پہ نظر تراون تو یا ترالس متعلق پڑھن تو اس یہ سمجھ کہ ترال کوتہ علم ادب حوالہ اوسمت زرخیز، مگر سن امید بیٚیہِ تمہِ ساتہٕ بڑان ییٚلہِ أسۍ موجودٕ جنریشنس پہ نظر تراون تو تم مختلف فیلڈن مز نام کماون بلکہ علاقک نام روشن کران۔ کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ سپز کاٹھمنڈوس مز ساؤتھ ایشین گیمز تو تر مز کور ترال کیو کینٛژو بچو شرکت تو تمو زون تتہ گولڈ میڈل تو تمو کور علاقک ناو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ روشن۔ مگر یمن بچن مز اوس اکھ بچہ شیخ اذان تہ، آز گٔے أسۍ تہنٛد گرٕ تو تمن سۭتۍ کوٚر اَسہِ ملاقات۔ یمو چھُ شیخ اذان یم زن چھِ یمو چھُ اتھ چیمپین شپس مز 2 گولڈ تو 1 سلور میڈل حٲصِل کوٚرمُت تہٕ یہِ چھِ اکھ خۄشایِند کتھ۔ مگر سۭتۍ سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ تہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن سۭتۍ ملاقات کوٚر اسہِ بوٗز کہ تم چھِ تعلیٖم منٛز تہِ واریاہ بہتر، بلکہ تمو چھِ 4 پارٕ قرآن شریف حٲفظ تہِ کٔرمٕتۍ۔ ؤلِو وٕچھو أسۍ تہٕ تُہۍ یہ خاص رپورٹ۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ کھیل کے میدان سے اس خاص شمارے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، میں ہوں سعید اجاز۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری نظر ہر ایک خبر پر رہتی ہے، اور خاص کر جب ہمارے بچے مختلف میدانوں میں کسی بھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے ان بچوں کو ہم تلاش کریں گے، کیونکہ وہ بچے ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے باقی بچوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چند دن پہلے ہم نے ایک سٹوری کی تھی لینیو نیشنل سپورٹس جو یہاں پر اکیڈمی ہے بجونی ترال سے، تو اس میں کچھ بچے تھے جن کے ساتھ ہم نے بات کی تھی۔ ان میں ایک بچہ ایسا تھا جس سے جب میں نے بات کی تھی تو میں نے ان سے پوچھا، ان کو کاٹھمنڈو جانا تھا کھیلنے کے لیے، تو انہوں نے وہاں پر مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں نیشنل کھیل کے آؤں گا، مجھے گولڈ میڈل جیت کے آؤں گا اور انٹرنیشنل کھیلنے جانا ہے مجھے۔ تو کچھ دن پہلے وہ گیل وہاں پر منعقد ہوئی اور وہ مقابلہ منعقد ہوا، بہتر انداز میں منعقد ہوا۔ لیکن خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچوں نے اس میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ترال کے بچوں نے اس میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ اور ان بچوں میں سے جس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ مجھے یہ ٹارگیٹ ہے کہ میں گولڈ لے کر آؤں گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ارادے کسی بھی کام میں پختہ ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کامیابی انسان کی جو قدم ہے وہ چومتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت وہی بچہ ہے، ہم ان کے گھر میں موجود ہیں۔ ہم خوشی سے جھوم اٹھے جب ہم نے سنا کہ انہوں نے وہ اپنا وعدہ پورا کیا کہ انہوں نے گولڈ 1 نہیں 2 اور اس کے علاوہ 1 سلور میڈل بھی جیت کے آئے ہیں۔ میرے سامنے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ہمارا ننھا مہمان شیخ اذان۔ تو جی، میں نے آپ کا نام صحیح لیا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ جی سر، شیخ اذان۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ ترال میں۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں گولڈ لے کے آؤں گا، فائنلی آپ لے کے آئے ہیں۔ تو ہم آج صرف اس بچے کے اس گولڈ پر بات نہیں کریں گے، ان کے بہت سارے اچیومنٹس یہاں پر لگے ہیں، بڑا سجایا انہوں نے، ان کے والدین نے یہ ٹیبل، تو اس پر بہت سارے، لیکن ہم ان کی تعلیم و تربیت باقی چیزوں پر بھی بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ ایک خصوصی سٹوری اس بچے پر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ شیخ عمر مختار۔ شیخ عمر مختار۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں آپ کس سکول میں زیر تعلیم ہے؟ ہمدرد گرامر اسکول۔ ہمدرد گرامر اسکول جی ترال۔ تو یہ تربیت آپ نے یہاں پر یہ جو گولڈ حاصل کیا، باقی اس کی تربیت آپ کی کہاں چل رہی ہے، اور اس بارے میں بتائیے۔ پہلے تو میں اپنے اللہ کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، اور پھر میں اپنے پیرنٹس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور اپنے کوچ کا جنہوں نے مجھے بولا کیا کرنا ہے۔ اور یہ 3 گولڈ میں نے انہی 3 ہم آپ کے گولڈ میڈلز پر بھی آئیں گے۔ آپ نے اس اکیڈمی کا نام نہیں لیا جہاں پر آپ یہ سیکھتے ہیں؟ ہم لینو نیشنل سپورٹس اکیڈمی میں سیکھتے ہیں۔ تو آپ کے استاد کون ہیں؟ فیروز سر۔ فیروز سر۔ 31 کو آپ یہاں سے گئے تھے، کہاں؟ کاٹھمنڈو کے لیے۔ تو جب آپ کاٹھمنڈو پہنچے تو کیا لگا آپ کو؟ بہت اچھا فیل ہوا، کیونکہ صحیح سلامت پہنچے۔ تو صحیح بات ہے، انسان سب سے پہلے انسان ضروری ہے، اس کے بعد کھیل کود، کامیابی۔ تو آپ نے وہاں پر 3 مقابلے، 3 الگ الگ ملکوں کے ساتھ کھیلا ہے، کس کس کے ساتھ آپ نے کھیلا، یاد ہے آپ کو؟ جی سر، ادھر بھوٹان، نیپال اور انڈیا آیا تھا کھیلنے کے لیے۔ تو آپ کا مقابلہ کس کس کے ساتھ تھا؟ وہ مجھے نہیں پتا، مگر میں نے کیا تھا ایرو اسکائی، کیا تھا 2 کے ساتھ، ایک تو لینو نیشنل سپورٹس کے ساتھ، اور کیا تھا کرناٹکا کے والوں کے ساتھ۔ کرناٹکا والوں کے ساتھ؟ جی سر۔ تو کیا کیا جیتا آپ نے وہاں پر؟ کرناٹکا کے ساتھ بھی گولڈ نکالا، اور اپنے ایرو اسکائی کے ساتھ بھی گولڈ نکالا، لیکن
फाइट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। 4 फाइटें थे, 3 जीते और 1 हारी। तो कोई बात नहीं, जीत हार होते हैं क्योंकि आप बहुत छोटे हो, कम सिन हो, उसके बावजूद भी आपने ये मेडल जीते हैं। क्या क्या जीता आपने, इनके बारे में बताइए, हमें दिखाइए, हमारे नाजरीन को, पूरे त्राल को दिखाइए, क्योंकि सारे लोगों ने नहीं देखे हैं अभी। ये हो गया गोल्ड, ये भी हो गया गोल्ड, और ये है सिल्वर। तो जब आपने ये जीता तो कितनी खुशी मिली आपको? बहुत, जैसे आसमान छू लिया, बहुत। आपको आसमान छूना है और अभी आपको आगे जाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं इंशाल्लाह आपकी ये जो यहाँ पर आपने जो हासिल किया है वो यहाँ पर है। अभी बहुत कुछ आपको सीखना है क्योंकि आप बहुत छोटे हो। किस क्लास में पढ़ते हो? 3rd 4th में चढ़ूंगा। सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी आपको और आसमान छूना है, अभी आपको आगे जाना है। तो अभी आपका क्या टारगेट रहेगा आगे? आगे भी पहले इंशाल्लाह मैं गोल्ड मार्शल आर्ट की तरफ भी ध्यान दूंगा और उसके साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान दूंगा। पढ़ाई ज़रूरी है, वो आप देते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में अगर हम बात करेंगे, जिस खेल में हम किसी और गेम की बात या उसकी तारीफ़ या उसकी तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन जिस खेल में आप जाते हैं ये इंशाल्लाह आपको पढ़ाई में भी मदद देगा। पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। लेकिन आपका जो टारगेट है आगे, क्या करना चाहेंगे, क्या शौक़ है आपके दिल में? इंडिया को रिप्रेजेंट करना। इंडिया को रिप्रेजेंट करना। जी सर। नाज़रीन मोहतरम, ये देखो हमारे बच्चों में भी ये वलवला है, इनके दिलों में भी ये जज्बा है कि हम न सिर्फ त्राल, पुलवामा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और इनका ये ख्वाब है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। हम उम्मीद भी करेंगे और दुआ भी करेंगे इनका ये शौक़ भी पूरा हो और इनका ये जो अरमान है, और आप हर एक मैदान में कामयाबी हासिल करें, ये हमारी दुआ भी है और आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे। तो हमें ये बताइए कि पढ़ाई की तरफ आप अच्छे से ध्यान देते हो? जी सर। यहाँ पर हमने देखा आपकी एक अलोहा की सर्टिफिकेट एक है। जी सर, ये और वो हाँ जी, ये सर्टिफिकेट है और ये ट्रॉफी है। जी, ये किस सिलसिले में मिली आपको? ये स्टेट लेवल कंपटीशन था और श्रीनगर में था। स्टेट लेवल का? तो कौन सी पोजीशन आपकी कहाँ थी? मैं आया था टॉपर। जी सर, अलोहा सेंटर टॉपर। अपने सेंटर टॉपर का, सेंटर का टॉपर रहे हैं आप। तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि जैसा कि हमने देखा और यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप जैसे खेलों में आगे हैं और तालीम में भी है। उम्मीद करेंगे कि आपका जो निसाब है, जो स्कूली तालीम है आपकी, आप उसमें भी आगे चलेंगे। तो इस सारे ये जो सफ़र आपका, आप अभी छोटे हो, आपको आगे जाना है, तो इसमें ये बताइए कि सबसे सपोर्ट किसका रहा आपका? एक तो मेरी माँ का और अपनी नानी का, बस इन्हीं दो का, और अपने सर का। जी सर। तो घर में आपको कौन ये जो सपोर्ट करता है, नहीं आपको जाना है, अगर हार के भी आएंगे जाना है, कोई? मामा, बस मामा। नाज़रीन मोहतरम, इस बात से हमें ये बात यहाँ पर सामने आई, समझ आई कि वालिदैन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बच्चों को हौसला देते हैं। अगर हमारा बच्चा सिर्फ खेलने के लिए जाए, मैदान में जो उतरा है वो कमाल है। जीत हार तो ये खेल का हिस्सा है, कभी हम हार भी सकते हैं, कभी जीत भी सकते हैं, लेकिन वालिदैन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो खेल कूद हो। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब हमारे बच्चे किसी मामूली फील्ड में, किसी पढ़ाई में या किसी छोटे क्लास में नाकाम होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो हम अपने बच्चों का हौसले जो होते हैं पस्त करते हैं, उनको डांटते हैं। लेकिन वो तरीका नहीं है। इस बच्चे ने जैसे बताया कि इनके वालिदैन को भी हम मुबारकबाद देना चाहिए, इनके पूरे कुंबे को, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को हौसला दिया, उनको ये बताया कि आप जाओ, परेशानी नहीं है। खेल कूद को हार जीत का ही मसला होता है। हमें भी अपने बच्चों को खेलों के साथ साथ बेहतर तालीम के नूर से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। साथ साथ में इनकी हौसला अफजाई भी करना है, क्योंकि मौजूदा दौर में अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना मुझे लगता है कि वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखा कि अगर बच्चों को कम उम्र में हम सही रास्ता दिखाएंगे तो वो मुस्तकबिल में इलाके का नहीं बल्कि अपने मुल्क के तारे बन सकते हैं, सितारे बन सकते हैं, इलाके को रोशन कर सकते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि शेख अजान भी अपने इलाके और वालिदैन और पूरे मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस इतना ही। जी सर। नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे साथ शेख अजान। इनके साथ हमने रिसेंटली बजवनी त्राल के एक स्टेडियम में एक मुलाकात की थी, और उन्होंने जब ये काठमांडू जाने वाले थे तो इन्होंने हमें बताया था कि हमें वहाँ जाकर हम गोल्ड जीत के आएंगे। लेकिन इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3, जिनमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर ये जीत के आए हैं। हमारी त्राल की शान है, हमारे कश्मीर की शान है, हमें जम्मू कश्मीर की शान है। उम्मीद करेंगे कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये वाकई अपने मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करेंगे।
नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमने पहले बताया कि वालिदैन का हर किसी बच्चे पर या उनके घर वालों का बहुत ज़्यादा रोल होता है और उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त जो हमारे साथ शेख अजान है, इनकी वालिदा मोहतरमा हमारे साथ मौजूद है, जो हमारी बहन है, तो हमने सोचा उनसे भी बात करेंगे। आपको सबसे पहले हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। अपना नाम बताइए। सलामत सर, मेरा नाम मसरत जान है और मैं शेख अजान की मदर हूँ। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह के नेशनल सतह पर अपने इलाके का, बल्कि हम कहेंगे मुल्क का नाम भी रोशन किया। अभी 2 मेडल और 2 गोल्ड और 1 सिल्वर हासिल किया। तो कितनी खुशी आप महसूस करें? सर खुशी की बात करें तो मुझे नहीं लगता है मैं ये एक्सप्रेस करूं कि मुझे कितनी खुशी मिली। खासकर हमारे मतलब जो होल फैमिली है, हमारे मैटरनल होम के या हमारे रिश्तेदार जो भी है, उनको सबसे ज़्यादा खुशी आज ही मिली है। मुझे लगता है कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैं ये एक्सप्रेस कर पाऊँ अपने फीलिंग्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह that has given me such a precious gift for me, for our whole family, and I hope surely he will do something big. He will become a big star. जहाँ तक हम इसके एकेडमिक की बात करें तो सर माशाल्लाह ये मतलब स्कूल में भी फर्स्ट आता है, अपनी क्लास में भी, और टॉपर रहता है। और ये हाल ही में इसने स्टेट लेवल में ये अलोहा का ये मेडल भी जीता है। जी। हाँ, वो इसका भी विनर रहा है। जी सर। और कुरान शरीफ भी इसने मतलब वो हफिज किया है 3-4 पारा सर। जी सर। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ज़रूर इस बात की जिक्र करना चाहेंगे कि एजुकेशन के जब हम कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, मुझे लगता है कि इस बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है। इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में यही उम्मीद करेंगे कि ये हर एक मैदान में, चाहे हमारा मजहबी लिहाज से, दीनी और दुनियावी अलूम के लिहाज से, उसमें भी कारकर्दगी करेंगे। आप एक, मुझे लगता है कि बेहतर आपका कुंबा, मुझे लगता है मुबारकबादी का मुस्तहक है, आपके पूरे रिश्तेदार भी। लेकिन ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से जो बाकी वालिदैन हैं, जिनके माँ, भाई, बहन, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपने बच्चे की बेहतर परवरिश की है। क्योंकि अक्सर हमने देखा कि ज़्यादातर वालिदैन अपने बच्चों को चलो खेल में ही, चलो स्कूल तालीम में ही, चलो बाकी चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इसको ऑल राउंड डेवलपमेंट कर रहे हैं इसको। तो इस बारे में आपकी मैसेज पूरे लोगों के लिए क्या रहेगी? जी सर, अगर हम बात करें इसके मतलब एकेडमिक्स की या स्पोर्ट्स की, ये उसमें भी अव्वल आता है। ये रहेगी सारे पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को अच्छे मतलब जो भी उनकी चाहत हो कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भी अच्छी कारकर्दगी करने के लिए, आगे जाने के लिए इजाज़त मौका दे। उन्होंने जब ये काठमांडू जाने वाले थे तो इन्होंने हमें बताया था कि हमें वहाँ जाकर हम गोल्ड जीत के आएंगे। लेकिन इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3, जिनमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर ये जीत के आए हैं। हमारी त्राल की शान है, हमारे कश्मीर की शान है, हमें जम्मू कश्मीर की शान है। उम्मीद करेंगे कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये वाकई अपने मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। मुझे मेरे कैमरामैन जुनैद कश्मीरी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।